Are you done? Yeah, I'm sure. So why do you bring the word couture all the time? It's an abuse of the term, yeah? It's a category. Yeah, but don't. क्यों चिल्ला रहे हैं इमाम सिद्दीकी? No, but this is a We facade. can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. And more important, किस पर? Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why? We'll use the door then. We have two. Feel free to use the door. I'm happy we leave. Thank you. ऐसा क्या हुआ जिससे एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट इमाम सिद्दीकी को आया गुस्सा? I'm sorry I'm raising my voice like this, but this is a facade. You can't use the word couture like randomly. Couture has nothing to do with India. यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर्स को भी मजबूर होना पड़ा इमाम को बाहर निकालने के लिए। I'll be happy to go. No, I'll leave now. It's okay. वेल इमाम का ये सब ड्रामा हुआ नेहा धूपिया की वजह से। जी हाँ, नेहा धूपिया। इनफैक्ट इस इवेंट के पहले दोनों एक दूसरे से मिले, मीट एंड ग्रीट किया, लेकिन इन नो टाइम ऑल दैट चेंज्ड। दरअसल एक्ट्रेस नेहा धूपिया, मसाबा गुप्ता और कई फैशन डिजाइनर्स रिसेंटली एक स्टूडेंट फैशन अवार्ड्स के जजेस बनकर आए थे, जहां से सभी रैंप पर इन डिजाइनर स्टूडेंट्स के डिजाइन्स को देखकर अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे। लेकिन इन डिजाइन्स को लेकर नेहा का एक स्टेटमेंट इमाम को पचा नहीं और उन्हें आया गुस्सा। This is your couture or your Fred pump? Yeah. So Neha, I have a problem. I'm so sorry. You're doing this as a judge. The word couture is a French standard. Let's please not abuse it on a platform like this. This has nothing to do with couture. Couture is a French standard that not a single Indian designer has qualified for. So please don't abuse the term. You're dealing with students. Please give them the impetus they deserve. I'm sorry I'm raising my voice like this, but this is a facade. You can't use the word couture like randomly. Couture has nothing to do with India. There's not a single Indian designer who is qualified as a couturier. I hope you know that. are you done? Yeah, I'm sure. Thank So you. why do you bring the word couture all the time? It's an abuse of the term, yeah? It's a category. Yeah, but don't. You can't classify it. It's a recognized institution. No, but this is a facade. We can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why We'll use the door then. We have two. Feel free to use the door. I'm happy we leave. Thank you. I'll be happy to go. No, I'll leave now. It's okay. वेल इमाम तो जैसे यहाँ नेहा को फैशन डिजाइनिंग का लेसन देने की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन इमाम इतने अग्रेसिव हो गए कि नेहा ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर्स ने भी इमाम को यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। No, but this is a We facade. can discuss the point of view later. I'm a judge. Let me do my job. Wait, you're not doing the judge's job. You guys are laughing amongst yourselves. You're making a facade of this whole thing. It's irritating being here. No, I'll stay here. Why? We'll use the door then. We have two. Feel free to use the door. I'm happy we leave. Thank you. I'll be happy to go. लगता है इमाम के सर से बिग बॉस 6 का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, इसीलिए वो इस इवेंट को भी बिग बॉस का घर समझ बैठे। इनफैक्ट इसीलिए इस इवेंट से पहले भी उन्होंने यहाँ खोलनी शुरू कर दी बिग बॉस की पोल। जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं। क्या एक कंटेस्टेंट को 75 लाख दे सकते हैं जिन्होंने कुछ योगदान नहीं किया गए साल के शो में, यानी कि रतन राजपूत, और इस साल अगर वो 40 लाख दे सकते हैं उपेंद्र पटेल को जिसने भी कोई योगदान नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे का तो कम से कम 10 करोड़ हक बनता है। आपको क्या लगता है? रिपोर्टेडली सीजन 8 के लिए इमाम को अप्रोच किया गया था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन इमाम की हाई फीस डिमांड्स की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी और इस डेवलपमेंट को कंफर्म किया इमाम ने। And are you watching Big Boss? So how? Of course I'm watching Big Boss. I'm enjoying it. It's a great season. But मुझे लगता है कि अगर इमाम बिग बॉस में होता तो सबकी कुंडली जागरूक कर देता। रही बात बिग बॉस सीजन 8 की, उन्होंने मुझे बुलाया ज़रूर है, लेकिन बात पैसे पे आके अटकी है। और यहाँ मैं ऐलान करना चाहूँगा आप सभी के चैनल्स के माध्यम से कि अगर वो लोग एक कंटेस्टेंट को 75 लाख दे सकते हैं जिन्होंने कुछ योगदान नहीं किया गए साल के शो में, यानी कि रतन राजपूत, और इस साल अगर वो 40 लाख दे सकते हैं उपेंद्र पटेल को जिसने भी कोई योगदान नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे का तो कम से कम 10 करोड़ हक बनता है। आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ। आप अपनी राय मुझे ट्विटर पे बताएं। जो भी वहाँ पे होता है, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं, लेकिन जो हम लोग करते हैं वो अपने आत्मविश्वास कायम रख के करते हैं। लेकिन जो झगड़े होते हैं, जो बातें होती हैं, हर जगह झगड़े होते हैं भाई साहब। आपकी ज़िंदगी में झगड़े नहीं होते? जिस तरह से वहाँ पे दिखाया जाता है कि हर जगह झगड़े होते हैं, हर जगह नाइत्तेफाकी होती है,
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से अफसोस होता है कि आज हमारे समाज में उस चीज़ को मनोरंजन कहा जाता है। वेल, अब इमाम के इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को बिग बॉस के मेकर्स और सलमान कितना पचा पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इमाम ने यहाँ अपने बिहेवियर से ये तो साफ कर दिया कि इमाम जहाँ होते हैं वहाँ कंट्रोवर्सी खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। Are you done? Yeah, I'm sure. So Thank why you. do you bring the word couture all the time? It's an abuse of the term, yeah? Category. Yeah, but don't. जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी किसकी नहीं।